जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। देखिए, सामने फैला है माउंट ऑफ ऑलिव्स का यहूदी कब्रिस्तान। दुनिया का सबसे पुराना यहूदी कब्रिस्तान। यहाँ 3000 साल से ज्यादा पुरानी कब्रें हैं, लगभग 1.5 लाख कब्रें। हर पत्थर, हर कब्र एक कहानी कह रहा है, जीवन की, मौत की और उस महान दिन की, उम्मीद की जब मसीहा आएगा। यहां खड़े होकर दिल भर आता है, क्योंकि यह जगह सिर्फ कब्र नहीं, यह उम्मीद की जगह है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान राजा दाऊद के समय से चला आ रहा है, लगभग 3000 साल पुराना। जब दाऊद ने यरूशलेम को राजधानी बनाया, तब से यहां दफन होना शुरू हुआ। यह पैगंबरों की कब्र है, हग्गई, जकरिया, मलाकी। Expensive cemetery. Okay? सबसे महंगा कब्रिस्तान ये है जहाँ पर हम खड़े हैं। Why is that? Why is this cemetery? And when we go, by the way, we're going to be on this road soon, in about an hour and a half. And you will take a look at your left side and you will see the whole mountain is full of graves like this. हम नीचे जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और आप जब वहाँ पर भी खड़ा रहकर देखोगे, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा कब्रिस्तान है। वहाँ पर आपको पूरी कब्रें ही कब्रें दिखेगी। All these graves are for Jews. ये जो यहूदी लोगों के लिए कब्रिस्तान है। Why Jews love to be buried here? क्यों यहूदी लोग चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उनको यहीं पे दफनाया जाए? I want to hear some. जब मसीह आएगा तब वो When the second coming, they're waiting for the डोर second खोला जाएगा और Dead will तभी be जो rise. मरे हुए Dead हैं will सबसे rise. पहला उनके सामने जाएंगे। One. What did he say? He said कि when Jesus will come, the door will open and that those who are dead, those will resurrected first. No, they're waiting for Very the Messiah. close, Yes. but Jews don't believe in Jesus. They're waiting for No. the Messiah. They are Messiah, waiting for the I'm Messiah. saying Madam, Messiah. Second what did you coming. say? The second coming, they're waiting for the They're Ah. waiting for the Messiah. The Jews believe when the Messiah comes, he will go down the Mount of Olives. Why? Because they believe he will enter the temple from the east. Where's the sun? And this is morning, so where's east? Yes. So from this side, the Messiah will come down the Mount of Olive. And what you see over there, the Golden Dome, that's a mosque for the Muslims. Right there supposedly was the temple. So वो And if there's gonna be a third temple, where's gonna be built? then There only. This has to be destroyed and a problem will happen. But they believe that the temple will be built there and the Messiah will come from here. And when the Messiah comes from here, every All dead these- one will rise with it. So the third temple will be made, they're saying. वो कहते हैं कि जब यीशु मसीह, जो यहूदी लोग ये समझते हैं, यीशु के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं रखा, They believe परंतु there's a उनका third मसीहा temple, आएगा, that's what they're coming. उनका बचाने वाला आएगा, तो वो ये जो पूर्व दिशा से जैतून की पहाड़ से वो मंदिर में प्रवेश करेगा। और मंदिर क्या है? जहाँ पर अब हम मस्जिद देखते हैं, वहाँ पर जो पहला और दूसरा मंदिर था, वहाँ पर अब तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। और जब यीशु उन मसीहा, जो यहूदी लोगों के विश्वास के अनुसार जब आएगा, तो पूर्व की ओर से इस जैतून की पहाड़ी से नीचे उतरकर वो उस मंदिर में प्रवेश करेगा। और जब वो आएगा तो जितने भी लोग यहाँ पर कब्रें हैं, वो सारे कब्रों में से सब जो मरे हुए लोग हैं वो ज़िंदा हो जाएगा। और इसलिए हर यहूदी चाहता है कि मेरी जो कब्र है इस जैतून पहाड़ पर हो, क्योंकि जब उनका मसीहा आएगा और मंदिर की ओर जाएगा तो वो पहले ज़िंदा हो जाएंगे। Okay? Now, that's the Messiah's first coming for them. ये उनके लिए पहला आना है मसीहा का। Jesus' first coming, did he come from the east and enter the temple? Jesus. क्या Did he यीशु come मसीह from the पूर्व east? से आकर No, मंदिर में? no, he
Yes, This is yes, the he east. came. होसाना On होसाना Sunday. होसाना। Did he went down there? क्या वो नीचे Did he गया? enter the temple? क्या वो मंदिर में प्रवेश किया? Did some dead ones arose with them? Yes. क्या क्या मुर्दा जिंदा हो गए जब ही? Fulfilled. Okay? Now, the last thing I'm going to say is about the stones and the small rocks you see on top of the graves. कितने लोगों ने उस कब्र के ऊपर पत्थर देखे हैं, देख रहे हैं? Yes. और कितने लोगों को ये जानना चाहते हैं कि ये पत्थर क्यों रखे हैं? ओके ओके। It got nothing to do with the religious. This is a tradition. ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये एक रीति रिवाज है। Before, they were burying like they buried Jesus. Remember when I told you Jesus was born as a Jew, lived as a Jew, died as a Jew. What I Ish. mean died, he was buried as a Jew. यीशु मसीह यहूदी था, वो यहूदी जन्मा, यहूदी जिया, यहूदी मरा और यहूदी की तरह वो जी उठा। आमीन। So, before they would bury inside a cave. जब यीशु मसीह को कब्र में रखा जाना था, This cost too much money to dig a cave. क्योंकि एक कब्र को खोदने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। So they start digging in the ground and they put the body under the ground. जब उन्होंने ज़मीन खोदना शुरू किया और उसके जो शरीर को रखना शुरू कर दिया, Wild animals will come and will eat the corpse and the body तो and the flesh. हाँ, अगर उन्होंने कब्र के लिए समझो ज़मीन खोदनी चाहिए और अगर ज़मीन खोदकर उसको वहाँ पर दफनाना चाहा, तो जो जंगली जानवर है वो आकर उस शरीर को खा लेंगे। इसलिए So strong men that they join the funeral will bring some big rocks and they put on top of the grave. तो क्या होता है, जब भी कब्र में रखा जाता है तो जब कब्र बनाई जाती है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं ताकि जंगली जानवर उनको ऐसे ये करके खाए ना, खोद कर खाए ना। When you look at the grave, the more big rocks on the grave shows how many big muscled men helped in the funeral to put the rocks. तो ये जो पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं ये दिखाते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग बलवान मनुष्य ने उस कब्र में उस व्यक्ति को रखने के लिए मदद की। तो जितने लोगों ने उस कब्र में रखने के लिए उस व्यक्ति को मदद की थी, उतने सारे पत्थर उस कब्र के ऊपर रखे हुए हैं। This generation was gone from this tradition was gone from one generation to the other till today. When you see this, the people that come to visit the grave, they put a small stone on top of it. सो अब वो जो रीति रिवाज है वो अभी तक चला आ रहा है। तो अभी ऐसा है कि जो भी लोग उस कब्र को देखने के लिए आते हैं, मतलब हर टाइम में जो कोई भी आता है एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस कब्र के ऊपर रखता है, तो पता चलता है कि कितने लोग उस कब्र को मतलब उस व्यक्ति गया है देखने के लिए आए हैं। This gives us a little bit of an idea how many people are visiting each grave and if the dead one is famous or not. Look, some graves have so many stones on top of it. Some graves have one or two, which has a very small family. Some has tons like this one and like this one. So it gives you roughly an idea about the person who's dead. Okay? सो ये कब्रों के ऊपर रखे हुए पत्थरों से पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना फेमस था, कितना बड़ा था, उसकी फैमिली कितनी बड़ी थी। अगर बहुत ज़्यादा पत्थर है तो बहुत सारे लोगों ने उसको आकर मिला है, मतलब कब्र को देखने आए हैं। और कम पत्थर है इसका मतलब बहुत छोटी फैमिली है और कब वो ज़्यादा फेमस नहीं था। तो ये पत्थरों को गिनकर हमें पता चलता है कि कितने लोग उस कब्र को देखने आए थे। आमीन आमीन। चलो अभी कब्रिस्तान में मत रहो, चलो रेजरेक्ट हो जाओ। काय सांगायचं त्यांना ब्रदर?